Good afternoon, everyone. Good afternoon, Arman. Let's begin today's session. And before I start our session, one instruction that is try to write down your number in chat box. Try your level best to write down numbers in your chat box because uh, so many people uh, they are sending email or message after the session. So yeah, if you can write down your Not, you don't write down your number here. I did not tell you to write down your number here. So I'll mark absent those who have written. Okay. Have I said you to write down your number in chat box? No need to write down. So those who are writing, I'm going to mark their absent. Once again, no need to write down your number in chat box. If you are able to hear me, then so I will mark absent for these people: Vaibhav, Mihir, Abhishek, Manan, Jinali, Kushbu, Sima, Emangi. Why you have written your number? Please listen carefully what I'm saying. What I'm saying is try to write down your number in chat box whenever I say. Okay. So do not send me a message afterwards because I need proof that you have attended session. That's why I'm taking a number in chat box. Okay. So afterwards, I mean, yesterday two students send me message. That's fine. I mark their present, but now onwards, I will not mark the present. Okay. Try to write down a number in chat box. If you are skipping or if you are left out, then it's like next time you be careful. Okay. Okay, so Abhishek, you raise your hand. Do you have any doubt? Abhishek. I think Abhishek is not able to hear me. यस सर Any सर doubt? सर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में सर दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो वेट कर लो। एक्चुअली स्ट्रिंग का हमने बहुत कम देखा है और थोड़ा ज्यादा हम आगे जाके देखेंगे। देखो ये सिलेबस है ना, तो इसमें आता ही है स्ट्रिंग वाला आगे जाके भी। थोड़ा वेट कर लो, अभी हम बेसिक ही चला रहे हैं, तो पहले वही खत्म करने के बाद ये आगे जाके स्ट्रिंग का ही लूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, हाँ, तो लेट मी प्रेजेंट। Okay, I think you can see. Okay, so I think what we have seen. So in last lecture, we have seen about this thing. Scanner class. I think we have done this scanner class and buffer editor class previously, like one on I think on Friday or Thursday we have seen, or this Monday we have seen. And yesterday I just told you that we have covered, and what else we have covered. So we have covered the strings, okay, concatenation, lengths, and basics only, and then this math operations, library method. Yeah, fine. So don't worry, we'll do some of the more example of strings. It's because it's very important things. Okay, next topic is Java operator precedence. Precedence. What is this Java operator precedence? Okay, so when you write down, so in IDE. Okay, there are a lot many things are open. Let me just close something. Okay, anyway, I'll close it later on. So in IDE, so if you're writing some expression, integer a is equal to 10, then okay, b comma b is equal to 5. So just for example, integer c is equal to a plus plus then b multiply c multiply then plus a semicolon. Okay, now this expression, can you figure out what should be the answer of this expression? I hope everyone can see, and everyone can see my screen. Yes or no? Just write down in chat box. यस सर। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा? नो डाउट हम तो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, पर
स्टार्ट कहां से करेगा? देखो ये मल्टीप्लीकेशन भी है प्लस भी है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है आप शायद सी में भी समझ चुके होंगे। तो भाई प्रायोरिटी किसको देना है? प्रायोरिटी किसको देना है? देखो ये स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन को, प्लस को कैसे करना है, क्या आंसर आएगा? चलो सबसे पहले कौन गैस करेगा क्या आंसर आएगा? मैं लिख देता हूं। ये मतलब सिस्टम तो परफेक्ट हमें सही आंसर देगा सिस्टम की तरीके से, पर कौन देखेगा ये आंसर क्या आना चाहिए? अभी देखो यहाँ पे 10 है प्लस 5, 10 प्लस 5 क्या है? अरे 15 मल्टीप्लाई बाय प्लस ए। यहाँ पे प्लस है की जगह पे मैं प्लस ऐसा लिख देता हूँ, है ना। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसके बारे में भी आऊंगा, इसके टॉपिक पे भी आऊंगा, पर अभी मुझे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब क्या, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और वो कमेंट भी कर देता हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? प्लस प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो अभी आंसर क्या आना चाहिए? हाँ तो आंसर आना, सर ब्रैकेट नहीं है बीच में? हाँ ब्रैकेट नहीं है, मैंने नहीं किया ब्रैकेट। तो भाई आंसर, हाँ ब्रैकेट करेंगे सर तो 65 ऐसे होगा, अगर ब्रैकेट करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा। हाँ मतलब क्या कैसे होगा? चलो अभी रन करके देखते हैं। तुम्हारा आंसर 65 है, ठीक है ना, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। और कुछ तो कोड नहीं है ना नीचे? राइट क्लिक, रन। 11 सर। 11, सिक्सटी फाइव आंसर आया, ठीक है। क्या किया उसने पहले? हाँ भाई सर प्री इंक्रीमेंट हो रहा है सर, तो 8 10 दिया है तो 11 हो जाएगा, उसके बाद 11 इंटू बी होगा। हाँ मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है प्लस सही है, से, तो सही है, बी 5 है तो वही मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और उसके बाद ऐड करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये सब मतलब सी में आ चुका है क्या? तुम लोग को पढ़ाई में आ चुका है क्या ये सब? यस सर। यस ठीक है, सर। तब तो सही है। तब तो मतलब सबको समझ में आ चुका होगा। मतलब प्रेसिडेंस मतलब क्या कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो देखो प्लस प्लस जो है प्रेसिडेंस वाला, या ये प्रीफिक्स नोटेशन है, पोस्टफिक्स नोटेशन भी वो ए प्लस प्लस लिखते हैं। तो मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है, तो ये पहले ये ऑपरेशन करेगा। तो 11 हो गया, 11 के बाद मल्टीप्लीकेशन की बारी आएगी, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा? 55, और ये बाद में जाके ये प्लस को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो भाई ये 55 प्लस हाँ, तो 10। ये भाई प्रायोरिटी कौन डिसाइड करता है? तो भाई ये एक रूल्स ही है, ये एक रूल ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से चलना है। हाँ भाई इसमें ब्रैकेट कर सकते हैं, क्लैरिटी के लिए हम ब्रैकेट कर सकते हैं, देखो हाँ, जो भी है ये हम ब्रैकेट कर सकते हैं। ब्रैकेट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, देखो समझ में आ जाएगा आराम से। पर अगर ब्रैकेट नहीं किया तो कैसे लेता है? तो वो तो अपने रूल्स के हिसाब से चलता है, पर हमें रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रेसिडेंस बोलते हैं। अभी मैं बोलूँ तो सिंपल है प्रायोरिटी। भाई प्रायोरिटी भाई इसमें किसको देना है? तो भाई इसका टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो भाई प्रायोरिटी भाई देखो, सबसे पहला प्रायोरिटी किसको है? पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस जो भी है उसको सबसे पहले ज्यादा है। सॉरी पोस्ट फिक्स यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, फिर आता है प्रीफिक्स, फिर मल्टीप्लीकेशन आता है। देखो मल्टीप्लीकेशन उसके बाद है, तो देखो हमने ये प्रीफिक्स था, तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आता है, तो उसके बाद ही ये कंसिडर करेगा। फिर एडिटिव एडिशन, फिर शिफ्ट ऑपरेटर है जो मैं बिट बाय बिट शिफ्ट करना है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन ग्रेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर उसके बाद आता है, बिटवाइज एंड, और इंक्लूसिव और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, टेरनरी ऑपरेटर, और फिर बाद में असाइनमेंट का बारी आते है। तो लास्ट में असाइनमेंट भी हम करते हैं, देखो लास्ट में हम असाइनमेंट करते हैं। तो ये भाई ये एक है, याद रखना है, थोड़ा याद रखना है कि भाई ये पोस्ट फिक्स वाला सबसे हाईएस्ट है, प्रीफिक्स वाला उसके बाद, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन शिफ्ट। आप लोगों ने पढ़ा, ये थोड़ा रिवीजन जैसा है तो याद भी रह जाएगा, क्योंकि एक आध मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे तो ठीक है, पर आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है ना।
इसके टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है. So that is a good habit that if we keep practice all these things. ये हो गया जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, है ना. अभी देखो ये एग्जांपल है, यही एग्जांपल है, ठीक है. यही एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे फिर एक बार. b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो अभी और रिजल्ट वर्क पे भी है, तो रिजल्ट के मैं डाल दूंगा a माइनस प्लस प्लस c माइनस प्लस प्लस b, ठीक है ना. ठीक, इसमें क्या आ गया. अच्छा, रिजल्ट तो हमने डिक्लेयर किया ही है, तो दूसरी बार डिक्लेयर की जरूरत नहीं. अभी प्रिंट करा दो रिजल्ट को, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है. तो अभी देखो ये प्लस प्लस वाला जो c है, मतलब वो क्या है, इसमें ताकि देखो तो क्या है, प्रीफिक्स है ना. ये भी प्रीफिक्स है. अभी देखो उसके बाद माइनस की बारी आती है. माइनस कहाँ पे, एडिटिव वाला यहाँ पे, तो उसके बाद बारी आएगी, तो उसके बाद ये सब होगा, ठीक है. तो अभी क्या होगा इसका आंसर, 2 सर. हाँ वही 2, फिर 6. मैं क्या करूँ, इसको रन करते हैं, देखते हैं, ठीक है. 2 आ गया. हाँ भाई, ये समझ में आया ना सबको भाई, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है. चैट बॉक्स में लिख लेना अगर नहीं समझ में आया तो. कोई है जैसा किसको समझ में नहीं आ रहा है. देखो कई सारे लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया होगा, आई एम श्योर. तो वो लोग उसके बाद भी, सेशन के बाद मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, सर कैसे हुआ था, फिर से समझाओ, है ना. तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. हाँ भाई, तो इसको हो गया ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसमें प्रायोरिटी हम फिक्स करते हैं, किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आएगी, ठीक है. ओके, ठीक है. यहाँ पे लिखा है, वो पढ़ लेते हैं. ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्रीफिक्स इज हायर देन द सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, हेंस रिजल्ट a माइनस प्लस प्लस c इज इक्विवेलेंट टू. देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस प्लस c की वैल्यू पहले होगी, मतलब 2 माइनस प्लस प्लस b 6, ठीक है. तो इसका क्या होता है, 8 होता है, -8, और a की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 माइनस 8 क्या होता है, 2. तो आंसर का आंसर 2 आएगा, ठीक है. चलो अभी दूसरा टॉपिक है छोटा वाला, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा. एसोसिएटिविटी क्या है. सो इफ एन एक्सप्रेशन हैज, एक मिनट. So if an expression has two operators with similar precedence, the expression is evaluated according to its associativity. So either left to right or right to left. ठीक है. देखो ये एक है, मतलब देखो क्या है कि 2 ऑपरेटर्स है, जो इज इक्वल टू 2 बार दिया हुआ है. इसमें उसकी प्रेसिडेंस क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इज इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसका 2 बार असाइनमेंट दिया हुआ है. तो हम कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेशन जो होगा एवेलेट कैसे होगा, उसकी एसोसिएटिविटी से होगा. सो आइदर लेफ्ट टू राइट, मतलब यहां से स्टार्ट करके ये करना है राइट, या राइट टू लेफ्ट. तो भाई इज इक्वल टू का हमें क्या पता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट. तो भाई सी का पहले कौन सा होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट वो इवेल्यूएट करना चालू करेगा. तो भाई सी पहले की वैल्यू कहां पे जाएगी, बी में, और बी की वैल्यू कहां पे जाएगी, ए में, ठीक है. तो यहाँ पे ही लिखा है, हियर द वैल्यू ऑफ सी इज असाइंड टू वेरिएबल बी, देन द वैल्यू ऑफ बी इज असाइंड टू वेरिएबल ए, ठीक है. वाई, क्यों, इट इज बिकॉज एसोसिएटिविटी ऑफ इज इक्वल ऑपरेटर इज फॉर्म राइट टू लेफ्ट, है ना. इसका इज इक्वल टू का जो एसोसिएटिविटी का है वो है राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट साइड, देखो सी राइट साइड पे, राइट टू लेफ्ट, है ना. तो ठीक है, अभी इसका टेबल देख ले, एसोसिएटिविटी का टेबल देख लेते हैं, ठीक है. अभी देखो पोस्ट फिक्स होता है, तो उसकी एसोसिएटिविटी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट. अगर 2 बार हमें आ गया तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे. प्रीफिक्स होता है तो हम कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट. बाकी सबका लेफ्ट टू राइट है, बाकी सबका लेफ्ट टू राइट है ना. 2 बार मल्टीप्लीकेशन आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 बार यहाँ पे है, एग्जीक्यूट तो नहीं करूंगा, जैसे कि a
मल्टीप्लाई बाय सी और मल्टीप्लाई बाय बी है, तो 2 बार आ गया, है ना। हम कैसे करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमें आ जाता है, हमारा अंडर ऑटोमेटिक है कि भाई लेफ्ट टू राइट ही हमें कंसीडर करना है, पर एक आध में याद रखना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो टर्नरी ऑपरेटर में राइट टू लेफ्ट है और असाइनमेंट में राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब में लेफ्ट टू राइट है, सब में लेफ्ट टू राइट, और एक राइट टू लेफ्ट किसमें, प्रीफिक्स में। तो भाई इसके रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है ना। राइट टू लेफ्ट मतलब, राइट टू लेफ्ट मतलब भी इसमें कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा और लेफ्ट के साइड जाता रहेगा, ठीक है। और किस में है, प्रीफिक्स में और असाइनमेंट में। टर्न नहीं तो आएगा, इसका एग्जांपल हम देखेंगे, पर बहुत इजी है ना, वो बहुत इजी है। हाँ, पोस्ट फिक्स में लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो भाई लिखा है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग हियर, मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑपरेटर मेक सेंस इन इटसेल्फ, अपने आप ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस आर्टिकल फॉर रेफरेंस व्हेन इन डाउट, ठीक है ना। हमेशा ये हम पढ़ सकते हैं जब भी हमें डाउट हो, ठीक है ना। पर थोड़ा याद रखना है कि भाई पोस्ट फिक्स का सबसे ज्यादा है, और फिर प्रीफिक्स का प्रेसिडेंस, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, शिफ्ट, और एसोसिएटिविटी अगर 2 बार है तो एसोसिएटिविटी हमें करना है, तो पोस्ट फिक्स लेफ्ट टू राइट, बाकी हमें राइट टू लेफ्ट करना है, ठीक है, प्रीफिक्स में, ठीक है। तो भाई ये हो गया, अभी जाके कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, और एक्चुअली हम कहाँ है सिलेबस में वो भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसको जूम कर देता हूँ। देखो जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ये सब हमने बेसिक देखा, जेडी की आईडी क्या है, वो सिंपल जावा प्रोग्राम कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग स्टाइल कैसे लिखते हैं। एरर वाला हमने अभी तक नहीं देखा, तो एरर वाला है जो एक्चुअली वो एरर तो हम देखते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो एरर वाला ही चैप्टर है, तो इसमें हम पूरा थोड़ा ज्यादा देखेंगे, पर एरर वाला फिर भी मैं अभी दिखा देता हूँ कि भाई एरर फिर भी मैंने दिखाया था कि एरर जो आता है। फिर हमने रीडिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल देखा, आइडेंटिफायर वेरिएबल देखा, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स देखा, नेम कांस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन भी देखा कि भाई कैसे लिखते हैं, कैपिटल स्टार्ट में रखना है, डेटा टाइप्स भी देखे, और उसके ऑपरेशंस। हाँ ये देखो इवेल्यूटिव एक्सप्रेशन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो अभी देखा, और ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमने कल देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, असाइनमेंट क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिव देखो अभी आज देखा अभी, और कन्वर्जन, ये टाइप कास्टिंग, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी एरर का एक देख लेते हैं, भाई एरर भाई क्या है, ठीक है। अभी देखो ये सिंपल सा प्रोग्राम है ना, ये तो ज्यादातर ये लिखने के टाइम ही हमें दे देता है, पर कई बार ऐसा होता है कि लिखने के टाइम नहीं, कंपाइलर हमें एरर भेजता है, कंपाइल टाइम एरर आता है। जैसे कि मैं कर देता हूँ सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 कर दिया, और सी डिवाइड बाय मैंने कर दिया बी। अभी देखो कोडिंग में ये सब सही है, कोडिंग में ऐसा लिख सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल है डिवाइड बाय 0, मतलब हम 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये लॉजिकल एरर है। ये कौन सी है, लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर, तो हमारा लॉजिक गलत है, हमने जो लॉजिक लिखा है कि 0 को हम डिवाइड करेंगे वो गलत है। तो भाई हम क्या करें, मतलब हम तो रन कर देंगे, पर कंपाइलर हमें रन एरर देगा, कंपाइलर हमें एरर देगा। तो भाई एरर कैसे आएगी, अरे ये तो रन हो गया, अच्छा मैं, अच्छा बी डिवाइड बाय सी कर देता हूँ सर बी डिवाइड बाई सी होगा सर, हाँ हाँ हाँ, किसी को हम तो वैसे इनफाइनाइट आता है। हाँ अभी ये देखो एक्सेप्शन आ गया, देखो डिवाइड बाय 0 हम नहीं कर सकते, तो भाई ये लॉजिकल एरर है, ये है ना, लॉजिकल एरर है ना। तो भाई एरर कैसे देखना है, तो जावा में एरर इस तरीके से आता है, देखो आईडी में रेड लाइन है, हमें मैंने कमांड प्रो में दिखाया था आपको, ये शायद यही एग्जांपल था, उसमें सिंपल वर्ड्स में लिखने ऐसा आएगा, और लोकेशन भी बताएगा कि कौन से नंबर पे है। देखो ये एक फायदा आईडी का, यहाँ पे एरर आ गई, मैंने यहाँ पे उसने किया कि न्यू पैकेज में डॉट न्यू क्लास डॉट मेन मेथड में है, तो भाई मैं ऐसे भी जैसे न्यू पैकेज में न्यू क्लास में मेन मेथड में कहाँ पे है, ये लाइन पे, तो भाई न्यू क्लास डॉट जावा में 15 लाइन, तो 15 लाइन पे जाऊंगा तो ये लाइन पे सही में एरर है, हाँ ये लॉजिकल एरर, यहाँ पे उसने थ्रो किया है एरर, है ना, तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ, तो ये आ गया एरर। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो एरर समझना,
जितना अच्छे से एरर समझोगे उतना अच्छे से प्रोग्रामिंग कोडिंग कर सकोगे। अगर एरर ही नहीं समझ में आया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एरर के बहुत सारे रास्ते, सबसे पहले तो यहीं पे लिखा है थोड़ा क्लियरली। हाँ, कई बार लिखा होगा कि भाई नहीं क्लियर है, सिंपल है, इसको राइट क्लिक कॉपी और नेट में सर्च करो। हमारे पास इतना अच्छा सा इंटरनेट है, कंट्रोल वी, है ना, बहुत सारा हेल्प मिल जाएंगे। सबसे पहले तो स्टैक ओवरफ्लो, है ना, स्टैक ओवरफ्लो। अभी देखो इसने तो बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया है वो कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमें एरर मिलती है। और देखो और भी एक तरीका है कि यहाँ पे क्लिक करो और ये डायरेक्टली पॉइंटर वहीं पे चला जाएगा। जैसे कि आपका कोड कुछ 1000 लाइन का है और एरर कुछ 700 लाइन पे है, तो क्लिक करोगे तो वहां पे हमारा पॉइंटर भी पहुंच जाएगा, तो हम एरर उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है ये सब। प्रोडक्टिविटी मतलब जो लॉजिक लिखना है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया एरर। हाँ, अभी देखो प्रोग्रामिंग के में एक फंडा है जो शायद मैंने नहीं बताया आपको। कोई भी लाइन लिखो तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है कि कल जाके आप नहीं और कोई दूसरा डेवलपर आ गया तो उसको भी कोड समझ में आना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ अच्छी तरीके से करना चाहिए। और जैसे कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी भी पढ़ने जाओगे तो वहां पे भी अगर आपको कोड लिखना है तो वो लोग बोलेंगे कमेंट लिखो, ये कोड क्या करता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। कमेंट्स कहीं भी कैसे भी कर सकते हो पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ डिवाइडिंग बाय 0। देखो ये कमेंट की, तो भाई आगे जाके कोई भी डेवलपर आएगा उसको पता चलेगा भाई मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं डिवाइड बाय 0 करता हूँ, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा लॉजिकली ये राइट नहीं है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ प्रिंटिंग रिजल्ट। तो भाई रिजल्ट मैं प्रिंट करा। तो एक्चुअली सही तरीका ये है, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, इसको निकल देते हैं। यहाँ पे कैसे कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं बाजू में, तो ये भी अच्छा रहता है कई बार, प्रिंटिंग रिजल्ट, हाँ ये भी अच्छा रहता है। तो पता चलता है एक एक लाइन वाला कोड क्या करता है। तो दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि कोड लिखते जाओ उसके साथ में उसका लॉजिक भी आप लिखते जा रहे हो, ठीक है। So this is the very good practice, ठीक है। Initializing variable, dividing by 0 और printing result, ठीक है। कई सारी कमेंट्स ज्यादा होगी, ज्यादा मतलब क्या कि एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या कि अगर चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्टार और स्टार स्लैश, है ना, इसके अंदर भी कमेंट लिख सकते, जैसे कि दिस प्रोग्राम, ऐसे लिखता हूँ, दिस प्रोग्राम विल परफॉर्म डिवीजन बाय 0, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करके, मतलब कमेंट ही है, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके ऊपर लिख लूंगा। तो कोई भी आके पढ़ेगा, देखो इसने भी कमेंट एक कर रखा है यहाँ पे, तो कोई भी आके पढ़ेगा इट विल बी गुड, उसको समझ में आ जाएगा भाई ये प्रोग्राम क्या है ना। तो वो एक एक लाइन का मीनिंग समझ आ जाएगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं होगी। ये बेनिफिट है, ये प्रोडक्टिविटी आपकी हमारी सबकी इंक्रीज करता है। और दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस इन कोडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। विदाउट कमेंट आपका कोड कितना भी अच्छा हो, सामने वाला नहीं पढ़ेगा, सामने वाला बोलेगा ये भाई क्या है ना। तो दैट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। और एक्चुअली क्या होता है कि भाई ये कंपनी में जाते हो तो सुपरवाइजर होता है तो आपको डांटेगा, बहुत डांटेगा, इफ यू आर नॉट राइटिंग एनी कमेंट्स, इफ यू आर राइटिंग एनी कमेंट्स ही विल स्कोल्ड यू बैडली, व्हाट इज दिस इज नॉट द वे टू डू कोड, ठीक है। एनीवे ये हो गया कमेंटिंग। और इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं, कि इसको सभी अगर कॉपी करके कोई वर्ड फाइल में रखो तो क्लियरली विजिबल है, सामने वाला भी पढ़ पाएगा भाई कोड किसका है। तो इसको हो गया डॉक्यूमेंटेशन भी, ठीक है। तो भाई ये हो गया, आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन, ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल भी कंप्लीट है ना। ये कहाँ गया, फर्स्ट प्रैक्टिकल भी कंप्लीट है। दूसरा प्रैक्टिकल जो मैथ्स वाला है जो हमने कल ही किया, तो वो भी हम करेंगे
ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई इसमें कोई डाउट, एनीवन है डाउट एनीथिंग? नो सर। ठीक है, ये तो अभिषेक ने बोला। व्हाट अबाउट अदर्स? फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। विल मूव टू सेकेंड चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज सेकेंड चैप्टर हियर। क्लास वेरिएबल। अरमान सर अभी कौन सा प्रैक्टिकल करना था? प्रैक्टिकल फर्स्ट वाला करना था ना, फर्स्ट वाला तो हमने कर दिया। अच्छा, अभी नेक्स्ट लैब में हम ये करेंगे, सेकंड और थर्ड वाला करेंगे। दिख रहा है ना अभिषेक? यस सर। हाँ हाँ हाँ, सुमंत कुमार, ये टेंशन मतलब, ये सब पीपीटी जो भी है, ये जैसा ही मेरा कंटेंट खत्म होता है, देखो ये नेक्स्ट चैप्टर का भी यहाँ पे रखा है, तो जब भी खत्म होता है मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा, है ना, क्योंकि मैं एक्चुअली अपडेट करता रहता हूँ। कई बार ये देखो, ये लिखा नहीं था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मैंने अपडेट की, अभी मैं पूरा डाल दूंगा तो अपडेट वाली आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मैं लास्ट में ही करूंगा, ठीक है। अरमान, व्हाट्स योर क्वेश्चन? क्लास वेरिएबल, आई मीन what you wanted to say? देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट वाला है वो अभी थोड़ा टाइम है, जैसे कि ये पूरा थर्ड चैप्टर ही आता है, तो थोड़ा वेट कर लो, है ना। तो सॉरी, फोर्थ चैप्टर ही आता है, तो थोड़ा वेट कर लो, उसमें क्लास वेरिएबल इंटरफेस जो भी है वो हम उसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टैटिक वेरिएबल, हाँ तुम अपने तरीके से भाई, बहुत सारे लोग अपने तरीके से आगे जा सकते हो, पर अभी बाकी के लोग फिर लगेगा कि भाई क्या चल रहा है ना। सो दैट्स व्हाई जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, जस्ट मिनट, 1 मिनट। Okay, so let's move to next chapter, that is second chapter. Just hold on. Yeah, sorry for the delay. What we were doing, yeah, but sir, it comes under scope of variable. Yeah, scope of variable, yeah, you see, सिंपल है। देखो, ये वेरिएबल है, तो उसका स्कोप क्या होगा, मैंने वो भी बताया, ये कर्ली ब्रेसेस जहां तक है तब तक ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर दूसरा क्लास भी हम मेंशन करते तो उसका, उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करे उसका स्कोप कहाँ से उस क्लास तक है। पर कई सारे वेरिएबल है, ग्लोबल है, स्टैटिक है, जो यहाँ पे आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। देखो, स्टैटिक वेरिएबल है, फिर एक फाइनल वेरिएबल भी करके होगा, है ना। तो वो सब इस चैप्टर में आता है, तो हम ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से उस टाइम भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो अभी इसको मतलब अभी जानने को कोई जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फाइनल वेरिएबल भी है, फाइनल इसमें एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, फाइनल
नहीं, फाइनली ही है, पर फाइनल वेरिएबल भी करते हैं, तो स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल तो वो भी हम आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, तो हम नाउ विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज सिलेक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस एंड लूप। देखो मैथमेटिकल फंक्शन शायद हमने अभी कर दिया, फिर भी हम देखेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक हमारा कवर्ड है, कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस दैट वी हैव सीन, पावर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड ही है। हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट, टू वे, नेस्टेड इफ, मल्टी वे, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब हम अभी देखेंगे। प्रेजेंटेशन में ही आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है ना, जिसमें हम कंडीशन, वो कंट्रोल करता है एक स्पीड को, मतलब एक जो भी एग्जीक्यूशन उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई नहीं, ये पैरामीटर है तभी आगे जाएगा, ये पैरामीटर है तभी तुम आगे बढ़ो, या फिर सब्सट्रैक्शन एडिशन जो भी है वो करो, तो उसको आता है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। सो कंडीशन, लूपिंग, जंपिंग, ये कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट्स है, ठीक है। So control statement are used to control over the order of execution of the statements. The two major types of control statement in Java: decision making statement, repetitive statements. ठीक है, तो इसका दो टाइप है। एक डिसीजन मेकिंग, जिसमें डिसीजन हम लेते हैं, तो इफ है, इफ एल्स, स्विच, ये डिसीजन मेकिंग है। रिपीटेटिव स्टेटमेंट क्या है कि जैसे कि लूप है, फोर है, वाइल है, डू वाइल है, तो ये क्या है, रिपीटेटिव, उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो रिपीट ही होता रहेगा, ठीक है। तो दो टाइप है, इफ और इफ एल्स, स्विच वो डिसीजन, और रिपीटेटिव में फोर, वाइल, डू वाइल, ठीक है। तो भाई कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग दोनों सेम है ना, डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल दोनों सेम ही है। सबसे पहले इफ का देखते हैं भाई। तो जावा इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन, इफ चेक्स बुलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, सिंपल, उसके बहुत सारे टाइप्स है, इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, इफ एल्स इफ है, स्विच स्टेटमेंट भी है उसका, है ना। तो भाई क्या करता है कि जो भी कंडीशन है उसको देखेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन करना, है ना। ये जो लिखा हुआ है कंडीशन, उसको इवेल्युएट करेगा, वो कंडीशन को टेस्ट करेगा। कंडीशन अगर इवेल्युएट होती है तो आगे जाएंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं जाएंगे। और शायद आपको पता ही, आपने सी में ये पढ़ा ही है ना, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा हम रिपीट जैसा ही हो रहा है। तो इफ कंडीशन क्या होगा, अभी देखो, हमारा जो पहला एक्सप्रेशन था, जैसे कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, चलो ये हम छोटा वाला कर देते हैं, और सी मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा, 0, 0 प्लस 10, 10 ही होगा। और मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएगा, इफ क्या होगा, इफ ए की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, सिंपल मैं प्रिंट कर रहा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, और मैं प्लस करके कॉन्केटिनेशन से ए को प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। तो अभी इसको क्या बोलते हैं, जो भी, अच्छा ए नहीं, मैं रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट की वैल्यू क्या आती है, तो भाई रिजल्ट की वैल्यू 10 आती है यहाँ पे। तो रिजल्ट की वैल्यू 10 है या 10 से कम है ना, तो ये इवेल्युएट करता हूं, मैं चेक करता हूं। इवेल्युएट मतलब कब के एग्जाम के पेपर कैसे इवेल्युएट होता है, ये राइट लिखा है, रॉन्ग लिखा है, तो ये राइट है या रॉन्ग है, तभी राइट हो रहा है, तो राइट हो रहा है तो हम आगे जाएंगे, रॉन्ग हो रहा है तो आगे नहीं जाएंगे। मतलब ये लूप के स्कोप के बाहर जो भी है वही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हाँ, तो भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंट कराता हूँ, रिजल्ट कंट्रोल V, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, ये इसको चेक किया, इवेल्युएट किया, प्रॉपर वर्ड इवेल्युएट है, इवेल्युएट किया, और फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। अभी देखते हैं ये इवेल्युएट सही तरीके से होता नहीं होता है। तो इफ कंडीशन क्या है कि हम जो भी कंडीशन रखते हैं उसके मुताबिक ही वो आगे बढ़ता है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। राइट क्लिक, रन, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 एंड रिजल्ट की वैल्यू जो मतलब आउटपुट है, ठीक है। ये सिंपल अपना इफ कंडीशन हो गया। पर अगर इसको बढ़ाना है कि भाई इफ कंडीशन तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम एल्स भी लिख सकते हैं, एल्स
कर्ली ब्रैकेट में क्या है, अगर देखो रिजल्ट की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 से ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो मतलब 10 से कम नहीं है तो ज्यादा ही है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, द वैल्यू ऑफ ए इज मोर देन 10। ये सिंपल एल्स वाला हो गया। सेव, तो इफ एल्स, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, सी की वैल्यू को 1 कर देता हूँ, तो अभी 10 से ज्यादा आएगा तो एल्स एग्जीक्यूशन होगा, एल्स का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अभी देखो सी की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 प्लस 10 15 हो गया। हाँ भाई, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 15 आ गई, तो 15 तो 10 या 10 से कम नहीं है, तो क्या आएगा, एलसी बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, तो यही एग्जीक्यूट होगा, मोर देन 10। देखो मैंने क्या लिखा, आंसर क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, एक्चुअली ए नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, मैं लिखने में ऐसे लिख लिया, RESULT, भी RESULT, देखो रिजल्ट, ठीक है। अभी सही तरीके से आउटपुट देगा मुझे, दिस वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज मोर देन 10, तो बाय डिफॉल्ट एल्स में चला जाएगा। देखो इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट एल्स में ही चला जाएगा, एल्स में जो भी लिखा है वो प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इफ कंडीशन, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई बता देना, ठीक है ना, फिर भी अगर नहीं बोल रहे तो फिर मैं कैसे हेल्प कर सकूंगा आपकी, ठीक है। अगर देखो इफ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे भी कंडीशन चेक करना है कि भाई सर ऐसा मेरा लॉजिक है कि भाई एल्स में भी कंडीशन चेक करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेस मैं फिर इफ लिख लूंगा, एल्स इफ, और मुझे कंडीशन, देखो अभी मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं अगर इफ लिख रहा हूं तो मुझे कंडीशन ब्रैकेट में देनी ही पड़ेगी, आई नीड टू गिव कंडीशन। मैं लिख लेता हूं, अगर रिजल्ट मेरा RESULT 15 ही होना चाहिए, 15 ही है तो भी ये प्रिंट हो। देखो एल्स देना जरूरी नहीं है, एल्स जो हम दे रहे हैं वो ऑप्शनल है, एल्स देना जरूरी नहीं है, अगर आप एल्स देते हो तो ठीक है, तो एल्स इफ में भी अगर नहीं आता है तो एल्स इफ में भी नहीं आता तो एल्स होगा, है ना। तो रिजल्ट इज, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लिखने में, इज 15, और एल्स में लिख लेता हूँ मोर देन 15, ठीक है। अभी सी में, चलो अभी 15 आ रही है वैल्यू, तो रिजल्ट 15 क्या होगा, पहले इफ कंडीशन में आएगा एग्जीक्यूशन, तो लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 मतलब क्या कि उसकी वैल्यू ये यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर एल्स इफ में आएगा, एल्स इफ में क्या होगा, इसकी वैल्यू 15 है तो मैच हो जाएगा, तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद तुरंत लूप से निकल जाएगा, उसके बाद लूप का कोई काम नहीं, इसका पर्पस फुलफिल हो गया, तो इसका कुछ काम नहीं, फिर डायरेक्टली ये प्रिंट होगा। हाँ इसमें भी अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट एलसी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी सी की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, मैं एक ही रखता हूँ, पहले ये प्रिंट करता है, राइट क्लिक रन, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 15, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट विच इज 15, अभी यही प्रिंट हुआ। अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, सी की वैल्यू में कर देता हूँ 2, राइट क्लिक रन, तो क्या होगा, दिस इज द वैल्यू, the value of result is, this is the result of value is 15, ठीक है। यही प्रिंट क्यों हो रहा है, अच्छा सी के हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, सी को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट मिनट, 1 मिनट वेट कर लो सब। हाँ भाई, तो हमने भाई यहाँ पे क्या किया, सी को हम यूज ही नहीं कर रहा था एक्चुअली, तो सी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो अभी क्या होगा, सी की वैल्यू क्या है 2,
सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 10 प्लस 10 20 हो गया, तो 10 2 हो गया, तो एल्स में ही जाएगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन मैच ही नहीं हो रही इफ वाली, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा, तो हम यहाँ इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, रन करेंगे और देखो मोर देन 15 हो गया, ठीक है। ठीक है एवरीवन, दिस इज रिजल्ट इज मोर देन 15 और आंसर है 20। ये अपना हो गया सिंपल इफ लूप, ये हो गया अपना सिंपल इफ लूप, ठीक है। ठीक है, तो अभी सिंपल इफ लूप कोड जो भी एग्जीक्यूट करना है ये देखो उसका स्टेटमेंट है, फ्लो चार्ट है। जैसे कि स्टार्ट, ये इसको स्टार्ट बोलते हैं, यहां से स्टार्ट होता है स्टार्ट, और ये फ्लो चार्ट जो होता है उसमें स्टार्ट और स्टॉप है ना, ये राउंड से होता है, ये स्टार्ट है ये स्टॉप है, ये स्टॉप वाला एक सिंबल है, ठीक है। चलो स्टार्ट किया, अभी कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक की, देखो हमने यहाँ पे किया था, भाई कंडीशन हमने यहाँ पे चेक की, तो कंडीशन चेक की, तो अगर ट्रू हो गया तो इफ कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे अगर ट्रू हो रहा है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ना, जो हमने देखा है, ठीक है। अगर फॉल्स होता है तो क्या आएगा, मैंने बोला इफ लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये चेक करेगा, कि ये नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। अगर ये हम नहीं रख रहे हैं तो जो भी कोड है बाद वाला वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इफ कोड से बाहर निकल जाएगा, और आफ्टर इफ मतलब और भी कोई इफ है बाद में तो वो एग्जीक्यूट होगा, तो बाद में जाके वो स्टॉप हो। मतलब आफ्टर इफ मतलब इफ के बाद वाला जो भी कोड है यहाँ पे, जैसे कि आफ्टर इफ वाला कौन सा कोड है ये, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। ये हो गया इफ स्टेटमेंट। और ये एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एज ले ली, एज की 20 है, अगर एज 18 से ज्यादा है, एज इज ग्रेटर देन 18, और आउटपुट आएगा एज इज ग्रेटर देन, जो हमने एग्जांपल ये लिया इसके जैसा ही एग्जांपल है, ठीक है। इफ एल्स भी हमने देख लिया, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, कंडीशन चेक करता है और एग्जीक्यूट द ब्लॉक इफ ब्लॉक कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। देखो इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर वो सही है तो ठीक है यहाँ पे जाएगा, सही नहीं है तो क्या जाएगा, डायरेक्ट एल्स में ही चला जाएगा, और एल्स में जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा, मतलब जो भी एग्जीक्यूशन वाला कोड लिखा है वो प्रिंट कर देगा। ये उसका सिंटैक्स है, ये उसका सिंटैक्स है, ठीक है। ठीक है, इफ एल्स की भाई कौन सा फ्लो चार्ट कैसे हम लिख सकते हैं, तो भाई फ्लो चार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, कंडीशन, तो भाई ट्रू है मतलब फॉल्स में जाता है, फॉल्स में जाता है तो क्या होगा, तो एल्स कोड एग्जीक्यूट करेगा, एल्स कोड बाद में उसके बाद तुरंत ही जो भी है हमारा उसके बाद वाला कोड वो एग्जीक्यूट कर लेगा। पर अगर इफ कंडीशन है तो इफ कंडीशन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और आफ्टर इफ मतलब लूप से बाहर चला जाएगा, और फिर आफ्टर इफ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये इफ एल्स वाला हो गया, ये इफ एल्स वाला एग्जांपल है, ठीक है। नंबर इज इक्वल 13 दिया है, अगर नंबर मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0 होता है, मॉड्यूलर 2 मतलब क्या कि जो रिमाइंडर होता है वो हमें आंसर देता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आता है, 13 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो वो 0 से इक्विवेलेंट नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा और ये हमें डायरेक्टली प्रिंट कर देगा ये ऑड नंबर। अदरवाइज ये प्रिंट होता है, अगर 8 होता है तो या फिर 2 होता तो ये इवन नंबर ऐसा प्रिंट करता है, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम है इवन नंबर वाला, सिंपल प्रोग्राम, ये सिंपल लॉजिक है इवन नंबर वाला, नंबर मॉड्यूलर 2 तो हमें इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको, एवरीवन गेटिंग? ओके सो यस सर। हाँ यस अभिषेक, डाउट है क्या? ओके ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि भाई इफ एल्स इफ लेटर बाकी है और थोड़ा उसका प्रोग्राम और स्विच स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि वो नेक्स्ट लेक्चर कल के लिए रखते हैं,
ठीक है। आज के लिए इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट ही रखते हैं। और भी आज हमने क्या देखा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला भी एग्जांपल देखा कि कैसे वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है। ठीक है, इनफ फॉर टुडे सर। सुमन कुमार, तुम मुझे बोल रहे हो या फिर मेरे बोलने पे हाँ बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो, अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है एवरीवन, राइट डाउन योर नंबर इन चैट बॉक्स। हाँ भाई। सर वो जितना भी कोड लिखेंगे लोग, सर हाँ। उसको कॉपी में अपने हैंड राइटिंग से लिख के फिर सबमिट करना है। नहीं, वर्ड फाइल चलेगा, जैसे कि ये प्रैक्टिकल और बोल रहे हो ना? यस सर। जैसे प्रैक्टिकल। पिछले सेमेस्टर मैम बोली थी कि कॉपी पे अपने हैंडराइटिंग में लिख के तब जमा करना है, तो बहुत सारा नहीं नहीं दिक्कत हुआ था। नहीं नहीं, वर्ड फाइल चलेगा, मुझे वर्ड फाइल ही चाहिए। लास्ट में या बीच में वर्ड फाइल ही मंगवाओगे भाई, मुझे वर्ड फाइल इतने प्रैक्टिकल्स की तुम दे दो, या मैं गूगल फॉर्म बना के बोल दूंगा, आप अपलोड कर देना, ठीक है ना? सर क्लासरूम बना दीजिए। हाँ वही वही क्लासरूम बना के कर दूंगा, अभी तो टाइम है बहुत, ठीक है ना? अभी तुम्हारी कुछ एग्जाम भी आएगी, तो उसके बाद ही हम ये सब करेंगे, ठीक है? ठीक है, लास्ट नंबर किसके लिखा है? उदित राज। उसके बाद कोई रह गया? भाई यहीं पे लिखना है नंबर, कहीं पे और नहीं लिखना है, मुझे मैसेज नहीं करना है, वरना मैं एक दो बार किया बस, ठीक है, और कंसीडर नहीं करूंगा। लेट मी स्टॉप प्रेजेंटेशन। अरुमान, थैंक यू। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। यस, उदित